طرح اللہ کا احسان ہے کہ مجھے ایمان دیا، مصطفیٰ جیسا رہنما عطا فرمایا، اسی طرح اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں اعلیٰ حضرت جیسا رہنما عطا فرمایا۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمیں مصطفیٰ کے عشق کا پیغام دیا ہے، جنہوں نے ہمارے دل کو اجڑنے سے بچایا ہے، جنہوں نے عشق کی کھیتی ہری کی ہے، جنہوں نے سرکار دو جہاں سے تعلق کو مضبوط کیا ہے، جو سوتے بھی تھے اس طرح کہ ان کا اسٹرکچر محمد، لفظ محمد کی تصویر بن جاتا تھا، ہر وقت دماغ میں عشق محمدی کا خمار رہتا تھا، جب بھی قلم اٹھتا مصطفیٰ کی عظمت پہ اٹھتا تھا، حضور پہ ہونے والے حملے کا وہ دفاع کرتے تھے۔ اس لیے شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت ہے، عاشق رسول اعلیٰ حضرت ہے۔ ہندوستان میں دوسری فیملی دولت کے لیے مشہور ہے، کوئی تجارت کے لیے مشہور ہے، کوئی شاعری کے لیے مشہور ہے۔ غالب کی فیملی شاعری کے لیے ہے، ابو الکلام کی فیملی سیاست کے لیے ہے، علی برادرز کی فیملی سیاست کے لیے ہے، اور صاحب ایک بہت بڑے حکیم اجمل خان کی فیملی حکمت اور طبابت کے لیے مشہور ہے۔ ایک خاندان ہے ہندوستان میں جو عشق رسالت کے لیے مشہور ہے، اسی خاندان کا نام خاندان اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جڑنے کا مطلب مصطفیٰ سے قریب ہو جانا، اعلیٰ حضرت سے جڑنے کا مطلب غوث اعظم سے قریب ہو جانا، اعلیٰ حضرت سے جڑنے کا مطلب غوث اعظم خواجہ غریب نواز سے قریب ہو جانا، اولیاء الصالحین سے قریب ہو جانا۔ اعلیٰ حضرت اپنے دور کے علم کے پہاڑ تھے، اور ابھی بھی قیامت تک شاید کہ اس کی کوئی نظیر نہ مل پائے۔ 1000 کی قریب کتابیں لکھ کر جو انہوں نے مسلک اور مذہب کی خدمت کی ہے، یہی وہ کتابیں ہیں جو اعلیٰ حضرت کو قیامت تک زندہ رکھیں گی۔ یہی وہ فکر ہے رضا کی جو آج سبھوں کے دلوں کو بریلی کی طرف موڑ دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بریلی ہمارا مرکز نہیں ہے، علمی مرکز فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے، بریلی مرکز۔ اب اس کے لیے لوگ زیادہ زور ڈال رہے ہیں، نہیں بریلی میرا مرکز ہے، بریلی میرا مرکز ہے۔ یہ بات بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نادان بولتے رہیں کہ فلاں جگہ مرکز ہے، فلاں جگہ مرکز ہے، یہ پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ ہے، کوئی پوائنٹ نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وجہ سے بریلی میرا مرکز ہے، اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے۔ مدینہ مسجد نبوی کا امام وہابی ہے، وہاں کا گورنر وہابی ہے، وہاں کا بادشاہ وہابی ہے۔ کیا مطلب؟ مدینہ میرا مرکز نہیں رہا، مدینہ ان اماموں کی وجہ سے مرکز نہیں ہے، وہاں کے شاہ فیصل کی اولاد کی وجہ سے وہ مرکز نہیں ہے، مدینہ راجدھانی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے۔ جب تک روضہ رسول رہے گا مدینہ ہمارا مرکز ہے، مدینہ میری راجدھانی ہے۔ اس دور میں بے شمار غلط فکروں نے غلط فکریں پروان چڑھی، ایسے میں اعلیٰ حضرت نے سچا راستہ دکھلایا، مسلک اہل سنت کا، فقہ حنفی کا، اور اولیاء صالحین کے راہ تصوف اور سلوک کا۔ اس لیے ہم سارے مسلمان اعلیٰ حضرت کے چھیتر چھایا میں آ گئے، تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں صحیح فکر دی تو اعلیٰ حضرت میرے محسن ٹھہرے، شیخ الاسلام ٹھہرے، ہمارے مرشد ٹھہرے، ہمارے امام ٹھہرے۔ بریلی شہر ہم نے راجدھانی اپنا مرکز میں نے بنا لیا، تو اب بریلی مرکز اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے، نہ کہ جامعۃ الرضا سے ہے۔ جامعۃ الرضا آج بنا ہے، منظر اسلام ایک مدرسہ ہے، نہ رہے منظر اسلام، نہ رہے جامعۃ الرضا، نہ رہے مظہر اسلام۔ بریلی مرکز نہ کسی ارسلان میاں کی وجہ سے ہے، نہ کسی توصیف میاں کی وجہ سے ہے، نہ کسی منمانی میاں کی وجہ سے ہے۔ بریلی میں کوئی نہ رہے، نہ کوئی مدرسہ رہے، نہ کوئی مکتب رہے، جب تک اعلیٰ حضرت کی قبر بریلی میں رہے گی سنیوں کا مرکز بریلی شریف ہی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مرکز اہل سنت بریلی شریف، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بریلی مرکز اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے، نہ کسی مدرسے کی وجہ سے ہے، اور نہ کسی اور دوسری شخصیتوں کی وجہ سے ہے۔ بریلی مرکز ہے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے، اور جو اعلیٰ حضرت کے مسلک کا سچا مبلغ ہوگا وہ میرا رہبر ہوگا، وہ میرا رہنما ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہی کیوں نہ صحیح، ان کے خاندان کا، اگر وہ نجد چلا جائے، دیوبند چلا جائے، ان کی فکر کے حامل ہو جائے، ان کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کی مخالفت کی وجہ سے وہ
हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। मैं उनका हाथ चूमूं, मैं उनकी पेशानी को बोसा दूं, जब वो रजा के मसलक का नहीं तो मेरा कुछ नहीं है। वो चाहे रजा के खानदान का फर्द क्यों ना हो, अगर बिहार के देहात का कोई शख्स अगर मसलक आला हजरत का मुबल्लिग है और उस मसलक पर मजबूती से कायम है, वो अजनबी शख्स हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अगर आला हजरत के खानदान का कोई फर्द वह नजदियों से साजबाज करे, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। जब वो रजा का नहीं है तो फिर वो हमारा नहीं है। और जो आला हजरत की फैमिली का हो और फिर आला हजरत के मसलक का दाई हो, आला हजरत के मसलक का हिमायती हो, इल्म फन का सूरज हो, तकवा और तहारत का चांद हो, तो फिर तो हमारे लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम वह रजा की निस्बत की वजह से है, उनके खानदानी निस्बत की वजह से है, इल्म की वजह से भी है, हुस्न जमाल की वजह से भी है, और दीन की खिदमतों की वजह से है। और फिर बरेली को की मरकजियत को मजबूती दिलाने के लिए अगर इदारा कायम करे और हजारों बच्चे वहां इल्म हासिल करें, ताकि उस राजधानी से इल्म का चराग भी रोशन हो, अगर वो उस खानदान का भी हो, तकवा और तहारत भी उसके पास हो, इल्म फजल भी हो, तो वही चौमुखी इज्जत का हामिल बन जाता है। उसी जात का नाम हुजूर अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया है। सिर्फ आला हजरत के खानदान में पैदा होने की वजह से ताजुल शरिया लाजवाब नहीं है, ताजुल शरिया हमारे मोहतरम रहनुमा नहीं है। अगर वो सिर्फ आला हजरत के खानदान में पैदा होने की वजह से कोई इज्जत हो अगर ज्यादा, तो फिर तो और दूसरे लोगों को भी मिलनी चाहिए। मगर आज वो जो सर पे बैठने के काबिल थे, आज वो हमारे सलाम का भी मुस्तहिक नहीं है वो, इसलिए कि जो मसलक आला हजरत का वफादार नहीं रहा, उसके लिए हमारा कोई सलाम कलाम उससे नहीं है। मगर ताजुल शरिया में चौमुखी फजीलतें दाखिल है। एक तो मसलक की हिमायत करना, सुलह कुल्लियत से मसलक आला हजरत को बचाना, सुलह कुल्लियत की रद्द करना। जो कहते हैं गुण भी सही है, गोबर भी सही है, जो कहते हैं कि लड़का 50 लाख महीना कमाता है, बेटी देने में हर्ज किया है, और जो कहते हैं कि बेटी लाने में ही हर्ज किया है। तुम तो हा हा करता है, मगर उसका बच्चा अपनी बदमज़हबियत की तबलीग करता है। उसकी बेटी तेरे घर में आके वह सुन्नी तो कम बनेगी, वह तुम्हारे घर के बाल बच्चों को नजदी बना देगी, क्योंकि उसकी बेटियों के दिमाग में भी नजदियत का जुनून चाह रहता है। वो अपने शौहर की फिक्र बदल देती है। उसकी औरतें भी मुबल्लिगा है। हमारी माँ बहन बेटियां तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए है, और न नमाज की है, न महफिल मिलाद की है, न वह पर्दे की है, न शौहर की फरमा बरदारी की है, न मसलक आला हजरत की तबलीग के ताल्लुक से उनके पास कोई हुनर है। ये तो जहां चेहरा देखा, एक पैकेट मिठाई में अपना तेवर बदल लिया, जहां किसी ने नर्म नबो लहजे में बात किया, उसी के गोद में झूलने लगी। तुम्हें भी मुबल्लिग बनना होगा आला हजरत के मसलक का। जब वो अपनी बच्ची की गुट्टी में पिला देती है कि तुम्हें वहाबियत फैलाना है, तुम्हें देवबंदियत फैलाना है, फिर वो अपने शौहर का ब्रेन वाश करती है और अपने सास का ब्रेन वाश करती है। वहां वो एक बहू बन के नहीं रहती है, वह वहाबियत का मुबल्लिग बन के रहती है। तो हमें भी अपनी बेटियों को तैयार करना होगा, अपने बेटों को तैयार करना होगा, वरना मेरा बेटा जो 12वीं शरीफ का झंडा उठाता है, सऊदी अरब नौकरी करने गया वहाबियत का झंडा लेके आता है। मेरा बच्चा जो 11वीं का तोशा खाता है, वो अलीगढ़ पढ़ने गया, वहां से लौट के आता है, वो देवबंदियत का मुबल्लिग बन जाता है। क्योंकि हमने सिर्फ झंडा उठाया, हमने बच्चों को बताया नहीं कि मसलक आला हजरत हक क्यों है, मसलक अहले सुन्नत हक क्यों है। हमने खोल खोल कर कमालात नहीं बताए, हमने उसकी वजूहात को नहीं बताया, हमने घर में दिन का चर्चा नहीं किया, बच्चों के दिमाग में बात नहीं डाली कि हमारे पास कौन सी बड़ी नेमत मौजूद है। नहीं, हमने झंडा उठाया, सिर्फ फातिहा किया, हमने मलीदा खाया, और हमने साहब तोशे कादरिया खाया, और हमने साहब लंगरे गौसिया खाया। उसके अलावा कुछ नहीं बोला। पीरो मुर्शिद आते रहे जाते रहे और नजराना लेते रहे। नहीं बोला कि टेलीविजन घर से नहीं हटेगा तो नहीं आऊंगा, अगर घर में कोई नमाज ना पढ़ेंगे तो मैं तुम्हारा नजराना कबूल नहीं करूंगा। नहीं, कुछ नहीं कहा। हाँ, सिर्फ फातिहा कराओ, लंगर लुटाओ, तोशा का फातिहा दो, मालदार बन जाओगे, दौलतमंद बन जाओगे, ये तो हमारा मुर्शिद बोला। मगर नमाज जो फर्ज आजम है उसके ताल्लुक से कुछ नहीं बोला। झूठ जो बहुत बड़ा गुनाह है उससे बचने के बारे में कुछ नहीं बोला। बस बोला हाँ ऐसे सतही तौर पर बोला, मगर बाल बच्चों और घर के सारे लोगों को जहां घर में आके कयाम करता था, जहां मोटे नजराने लेके जाता था, मगर वो अपने हद तक नमाजी बन के रहे, वह घर के अफराद को नमाजी नहीं बनाया, सिर्फ फातिहा और मिलाद पढ़वाया। तो अब वह बच्चा जब अलीगढ़ पढ़ने जाता है, वह 100 अहादीस नमाज की फजीलत के ताल्लुक से उनके टेबल पे आ जाता
है। नमाज ना पढ़ने की मजम्मत वाली अहादीस उनके टेबल पर वो रिसाला रखा रहता है कि जो नमाज ना पढ़े उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस आती है, बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मोमिन के दरमियान और कुफ्र के दरमियान जो चीजें तफरीक पैदा करती हैं वो नमाज है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बंदा चौंक जाता है, कांप जाता है। ये मुसलमान होने के नाते नमाज पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, उसके बगैर मैं मोमिन कामिल नहीं बना रहूंगा। अब वो नमाज पढ़ने लगता है, बोलता है मेरा पीर 10 साल से मेरे घर में आता है, वो हर साल 11वीं में आता है, लंगरे गौसिया चलता है, 12वीं का जुलूस निकालता है, मगर नमाज के ताल्लुक से ये कुरान करीम की 100 आयतें, ये 100 बुखारी मुस्लिम की हदीसें, नमाज न पढ़ने की मजम्मतें, इसके बारे में कभी मेरे मुर्शिद ने नहीं बयान किया। कहा कि मेरा मुर्शिद सिर्फ नजराने लेता है, उनको मेरी जन्नत से प्यार नहीं, मेरी आखिरत से प्यार नहीं, और मेरी हिदायत से प्यार नहीं। वह सिर्फ फातिहा मिलाद करना चाहता है ताकि मैं जाहिल रहूं, मैं बेनमाजी रहूं, और मैं जानूं कि पिया बख्शिश करवाएगा, ये हमको जन्नत लेके जाएगा। जिस दिन तुम जान लो कि गौसे आजम सारे पीरों के पीर है, वो 40 साल तक इशा के वजू से फज्र पढ़ते रहे और हर रात एक पांव पे खड़े होकर उन्होंने पूरा कुरान पाक खत्म किया, 20 साल इल्म हासिल किया मदरसात वली होकर, और 25 साल दरियाओं सहराओं किसरा के खंडरात में दरख्तों के पत्तों को खाकर खुदा की मार्फत का नूर हासिल किया। जब सारे पीरों का सरदार 40 साल तक अपनी पीठ को जमीन पर रात में नहीं लगाया, इशा की वजू से फजर पढ़ा, तो अगर हमारा पीर सो रहा है, हमारा पीर सिगरेट झाड़ रहा है और हमारा पीर अखबारात पढ़ रहा है, और उसके बावजूद हम जहालत के नशे में डूब कर कहते हैं मेरा पीर कुतुब है, यहाँ नहीं बल्कि काबा में जाके नमाज पढ़ता है, ये बताओ इससे ज्यादा सस्ता सौदा क्या होगा। मैं नमाज भी नहीं पढ़ूं और मुरीद हमको कुतुब भी समझे और बोले आसान की आंख बंद करके यहाँ बैठा है और ये मदीना में नमाज पढ़ने चला गया है। जहाँ ऐसे दलाल मुरीद मौजूद रहे वहां तो पीर के फारे नियारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जिस मुर्शिद का दामन थामा है वो गुटखाखोर नहीं था, वो आंख बंद करके काबा की दुहाई देकर नहीं कहता था मैं काबा में नमाज पढ़ता हूँ। दूसरे लोग सोए रहे मगर मेरा मुर्शिद अमेरिका के देहात में रहे तो 5 नमाजें बाजमात पढ़े, वह बिहार के देहात में रहे फजर की नमाज कज़ा न हो, वह 4 बजे सुबह आए तो 1 घंटे के बाद सबसे पहले उठकर नमाज अदा करे। वह दूसरों का पीर है जो अखबार पढ़ता था, जो गुटखा खाता था, जो सिगरेट पीता था, मगर मेरा मुर्शिद ताजुश शरिया था। जब भी देखा उसे कुरान पढ़ता देखा, जिक्र अज़कार करता देखा, उसे औरादो वसाइफ में देखा, दरसे बुखारी में देखा, मुफ्तियों की झुरमुट में देखा, फतवों की इस्लाह करता देखा, मजहबी मसाइल पे बात करता देखा। इसलिए सारे पीरों का कद उनके सामने छोटा है कि दूसरे दुनिया के मिशन में लगे हैं और ताजुश शरिया आखिरत के मिशन में लगे हैं। ताजुश शरिया